مرحوم بھٹو کے گھر میں تشریف لایا اور گھر کے حالت آپ سب دیکھ رہے ہیں. بیچارہ مزدور تھا. تو قادر عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. آج ہے یکم مئی اور عالمی یوم مزدور ڈے ہے، اور آج سے ایک روز پہلے یہاں پہ گلشن کبیر میں ایک انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا، جس کے باعث 4 مزدور موقع پر جاں بحق ہو گئے اور متعدد زخمی ہیں، اور زخمیوں کو اس وقت ریسکیو ہسپتال اسکردو میں اس وقت وہ زیر علاج ہیں. اس وقت ہم یہاں پہ موجود ہیں گلشن کبیر میں. یہاں کی فضا کافی سوگوار ہے اور لوگوں کا جو ہے لوگ کافی اس صدمے کو جو ہے فیل کر رہے ہیں، اور یہاں سے دور دراز کے گاؤں سے بھی لوگوں کا یہاں پہ آنے کا سلسلہ جاری ہے، تعزیت پیش کر رہے ہیں اور اپنے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. گلشن کبیر میں جو حادثہ پیش آیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ حادثہ کیسے رونما ہوا، اور اس حادثے کے بعد کیسے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ان کی امداد کی. ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا، اس وقت ہم موجود تھے یہاں پہ جو گلشن کبیر میں ایک مزدور کے گھر پہ موجود تھے. ہم بات کریں گے ان کے رشتہ داروں سے کہ کیا مشکلات ہیں ان کے لیے، اور ان کا جو زندگی کا جو آگے کا سفر ہے وہ کتنا مشکل ہے. ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں سوشل میڈیا یہاں تشریف لانے پر آپ لوگوں کی تہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ لوگوں نے زحمت کر کے مرحوم بھٹو کے گھر میں تشریف لایا اور گھر کے حالت آپ سب دیکھ رہے ہیں. بیچارہ مزدور تھا اور گھر کے حالت سے بھی بہت غریب تھا. آپ لوگوں کو پہلے بھی سوشل میڈیا پر اطلاع پہنچ چکے ہیں. بیچارے کا یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا فالج کا اثر ہے، اور لاہور میں زیر علاج کے لیے 3 سال اس کی میڈیسن ہو رہا تھا، لیکن گرمی کی وجہ سے یہاں لایا. اور ابھی بیچارہ مزدوری کر کے گھر میں بال بچے پال رہا تھا، اور بھی ایک معذور بچی ہے، وہ بھی زیر علاج ہے، اور یہ بھی 3 سال کی زیر علاج ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے لاہور میں. تو ابھی 2 مہینے کی دوائی لے کر یہاں گرمی کی وجہ سے آیا تھا. بیچارہ چندہ مندہ کر کے یہ مزدوری کر کے گھر میں بچوں کی علاج بھی کر رہا تھا، اور خود بیچارہ گھر کی کفالت بھی تھا. تو ابھی افت روڈ میں جو بلاک میں روڈ میں مزدوری کر رہا تھا بیچارہ، تو اللہ کو پیارا ہو گیا. تو ہم تمام سوشل میڈیا سے گزارش ہے، آپ لوگ جہاں بھی این جی اوز ہے، امدادی ٹیم ہے، ان سب کو میں گزارش کرتا ہوں جتنا بھی ہو سکے آپ لوگ اس بیچارہ غریب فیملی کے امداد کرے، اور اس کی جتنا ہو سکے
माली इमदाद करे, क्योंकि घर के हालात और ये बड़ा बेटा है और ये छोटा बेटा है, ये सबसे छोटा बेटा है। ये बेचारा जहनी तौर पर फालिज है और ज़र इलाज भी है, तो 3 साल की इलाज है। तो मैं तमाम सोशल मीडिया से और NGO से गुजारिश करता हूँ, और इसका एक बच्ची भी बीमार है, वो भी ज़र इलाज है। तो आप सब से गुजारिश करता हूँ कि जितना हेल्प हो सके इस बेचारा मरहूम भुट्टो की फैमिली के लिए थोड़ा इमदाद करें। वस्सलाम। इनकी बातें बहुत ही कसम पुरसी की हालत है। यहाँ पे 5 बच्चे हैं जिनमें 2 माजूर हैं, एक ट्रीटमेंट इनकी जारी है लाहौर में, और उनका ख़र्चा ख़ुद वो जो मरहूम जो मज़दूर है वो मज़दूरी करके उठाता था। तो कितनी मुश्किलात है उनकी आने वाली ज़िंदगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है सोशल मीडिया पे जो हमें देखने वाले तमाम लोगों से, जितना हो सके आप इनकी इमदाद करें और इनकी जो आने वाली जो ज़िंदगी है इनको आसान बनाएं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कल जो अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई और तकरीबन 16 लोग इंजर्ड हैं, जो कि RSPO हॉस्पिटल में एडमिट है। ये जो मज़दूर थे वो सुबह 8 बजे निकल रहे थे। ETI की एक प्रोजेक्ट FMR रोड बन रही है, तो ट्रक क्या नाम है, ट्रैक्टर ओवर लोड थी, सीमेंट भरी हुई थी, ओवर लोड की वजह से वहाँ पे हादसा पेश आया, जिसमें से 4 लोगों की डेथ हुई। उनमें से भी 2 इंतहाई गरीब जो है ना वो घराने से ताल्लुक़ रखता था। उसमें से एक का नाम भुट्टो है। भुट्टो को हम इनकी करीबी गाँव से हमारा ताल्लुक़ है, तो इंतहाई गरीब एक पासमानदा गांव और गरीब घराने से उसका ताल्लुक़ था। वो ख़ुद डिसेबल था और इसके 2 टोटल 5 उसके बच्चे हैं, जिनमें से 3 जो है ना वो डिसेबल है, अंडर ट्रीटमेंट है। तो आज हमने इनकी घर का भी विज़िट किया, हमने यहाँ पे मीडिया वाले आए, उनको भी दिखाया कि ये इंतहाई गरीब और पसमानदा गांव और घर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भुट्टो के लिए, इनकी फैमिली के लिए इमदाद करें, क्योंकि इनकी घर की जो खुद कफ़ील है उसकी, इनकी घर की जो चराग है वो बुझ चुका है। तो इनकी बच्चों की कफ़ालत के लिए, इनकी जो बच्चियाँ जो ज़ेर इलाज है उनकी ट्रीटमेंट आखिरी हद तक पहुँचाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उनके लिए इमदाद की जाए। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद थे जो दूसरे मज़दूर हैं जो इस हादसे में जाँ बहक हुए थे, हम उनके घर पे भी आए हुए हैं। तो हम बात करने चाहेंगे कि उनके महल्ला से कि उनके बारे में थोड़ा सा बताएं जी साहब कि उस मज़दूर के हवाले से क्या मतलब उनकी घर की हालत क्या है? घर को तो बहुत अच्छा को मजदूरी या और दिन में तो बहुत होती है, बचा हुआ मजदूरी नानु पूरा जान इसको बहुत बेला सुन या ना पेशा कोई पिंजो का बना जी ना सुन ये बोलते हैं बेला चिक बोले तो गेम को तुम तो सोचो ना को बिल्कुल सही। कोई सोचो फुल नहीं है मैं बहुत सारा सासा में जरूरी में था तो अहले मोहल्ले की बात आपने सुनी कि हालत बहुत ख़राब है, घर की हालत आप देख सकते हैं, और एक बेवा है और बच्चे नहीं हैं उनके, और वो कुछ चले गए तो वो एक बेवा छोड़ के गई है। घर आप देख सकते हैं। तो इस दिलखराश वाक़े में एक मज़दूर जो कि इनके साथ मौजूद था वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी जान बचाई और हादसा कैसे पेश आया, ये हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? आरिफ हुसैन। आरिफ हुसैन साहब, आप हमें ये बताएं कि वाक़या कैसे पेश आया और कितने बजे पेश आया, और जाए हादसा का ज़रा बता दें कि जो एक मंजर कशी आप ज़रा कर दें। नए दिन सोच बजो ठीक 7 बजे बजो 7 बजे नए दिन 20 बजो यूँ से ज्ञान ला जन्नत आ चढ़ाई क्राश भी से ज्ञान भी थोड़ी बजो और दे थोने मामूली चढ़ाई जी कुछ चढ़ाई मामूली यूँ से ज्ञान भी थोड़ी बजो चालो
chadai bi hume biyo सही chadai ma biyo ma ko gear change bejo usta bejo gear ko change be sin ne na gear ko mo ko nitol so se thuru se trali ter ko gamme wo ni chala la ni min ni su biyo chiko ai ni chiko ni sa ri chiko su de ni ma de na ko gamme ge ju he ma na gen so se ete jo na sta gari ko ko le ga ko mo chu se ne na yo halat ko cha ye mo na ge na tu le ba ge na so se chu na jo अच्छा वो जो जख्मी हुए थे वो मौके पे ही जा भाग हो गए थे इन जो है चढ़ना खरी था इन्हें का मौके के हाँ गल में सोई हो ये बाकी जख्मी सो हो जो सुई लाखों छाप हो जो सुई कामों छाप हो जो सुई गोल चोटों से जो दोस्तों से जो मजे अपने आप की मदद तक खपुल में दखल लेते जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जाहिद हलीम जो कि यहाँ से लोकल रिपोर्टिंग भी करते हैं, मुख्तलिफ़ अखबारात के साथ जुड़े हैं। तो हम उनसे उनकी तासुरात जानना चाहेंगे हालिया वाक़या जो रूनुमा हुआ है, तो आपकी क्या तासुरात है? जी इस वक्त हम ज़िला गांछा के मौज़ा गुलशन कबीर में मौजूद हैं, जहाँ एक बदकिस्मत जो ट्रैक्टर जो मज़दूरों से भरी हुई थी वो हादसे का शिकार हो गया और उससे 4 मज़दूर मौके पर जाँ भाग हो गए और जबकि 10 के करीब अभी मुख्तलिफ़ अस्पतालों में एडमिट हैं। तो ये हादसात तो रोनुमा होते रहते, इससे पहले मुख्तलिफ़ जगहों पे आग लगी है। खैर इंसानी जो जानों का ज़िया तो नहीं हुआ लेकिन माली तौर पर नुकसान हुआ, उसको जल्द उस नुकसानात का या उस हादसे का जल्द सद्भाव करने के लिए रेस्क्यू टीमें होनी चाहिए। वो खपुल हेडकोार्टर से हमारा ये जो इलाका है वो काफ़ी दूर है, यहाँ तकरीबन 1 या 1.5 घंटे की मुसाफत पे हम मौजूद हैं। तो रेस्क्यू की टीमें आने तक नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हुकूमत, इंतज़ामिया और दिगर जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे हम अपील करते हैं कि कम अज़ कम थगस जो हमारा तहसील हेडकोार्टर है वहाँ पे रेस्क्यू की कोई टीमें हों, वहाँ पे उनकी गाड़ियाँ हों, एम्बुलेंस हो। अब कल लोकल गाड़ियों में इन बेचारे मज़दूरों को जो ज़ख्मी हो गए थे उन्हें खपुलो DHQ और स्कर्दो RSQ में ले जाया गया है। तो हम पुरज़ोर इस वाक़े से जुड़े हुए उससे अब मुतालबा करते हैं कि कम से कम यहाँ पे एम्बुलेंस हो, रेस्क्यू की कुछ अमले हो, वो बर वक्त आके यहाँ पे ज़ख्मियों को इमदाद दे दें या जो जाँ भाग अफराद थे उनको उस जाए वक़्या से उठाने के इक़दामात करें। तो हम इस हादसे पे हम सब बड़ा दिल हमारा रंजीदा है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों से बड़ी तादाद में लोग को ताज़ियत के लिए आ रहे हैं। और ये मशरूम में एक बड़ा वाक़या है, इससे पहले तपसा में भी आग लगा था जिसमें एक घराने के तकरीबन 6 से 7 नफ़र लुक़मा अजल बन गए। तो अब जब वाक़यात पे दर पे हो रहे हैं तो कम से कम हुकूमत को, तो रेस्क्यू को और हमारे इससे हल्के का जो मिनिस्टर साहब है इंजीनियर इस्माइल साहब, उनसे भी हम अपील करते हैं कि रेस्क्यू की टीमें और रेस्क्यू ऑफिस का क़याम अब नागुज़िर हो चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि अब इससे बड़ी वाक़या रोनुमा होने से पहले यहाँ पे ये चीज़ें मौजूद होनी चाहिए।